Good morning, dear students. Today we'll start with again ray optics and optical instruments. So beta, yesterday we have seen about the refraction and about some important things about refraction through glass slab. So today we will go to study refraction through glass slab in detail. Okay. Yesterday I have given you the overall idea about the refraction through the glass slab. So today we will go for understanding refraction through glass slab. So for refraction through glass slab, yesterday only I have given you some important things which should be noted for the glass slab. So suppose I do have a glass slab. I have a glass slab. So I'll draw here. Okay. So my glass slab I will draw here. Anyhow you can draw that, not only vertical, horizontal also you can draw it, there is no problem. Now as told you yesterday, consider one ray, incident ray. This is the original incident ray. Okay. So it will come over here and I will draw the normal, everything you are knowing, and here also. Now after that it is going from air to glass. Again I am repeating for you. Again here it is air. So this will be the angle of incidence, angle made by the incident ray with the normal, and now it will bend towards the normal. Not much. So here again I will call this to be R1, this say to be R2, and now instead of going like that, it will bend away from the normal and it will go parallel to the original incident ray, and that's why I am calling this to be emergent. Okay. So this will be my incident ray. Okay. So this is a glass medium, so I will make like that. Okay. This will be my ray under refraction and this will be my emergent ray. So incident ray, emergent ray, angle I, incident angle, angle of incidence, incident angle, angle E, emergent angle. So now here also we are getting shift. Here we are getting the shift laterally in the ray. So how to get that shift? So this one can be called as the lateral shift. This is called as the lateral shift. Okay. Not inversion, it is shift. मिरर में देखते हो तो इन्वर्टेड दिखता है आपको, तो वो होता है लैटरल इन्वर्जन, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट. ओके. तो आप बोलोगे मुझे ये किन किन चीजों के साथ होता है? नो प्रॉब्लम. इफ आई विल टेक ग्लास स्लैब लाइक दिस, देन ऑल्सो आई विल हैव द सेम थिंग. I will observe the same thing. So that you have to keep in mind. So if it is like that, then also I'll be able to get the same result. So let me go to find those results. Suppose this is my incident ray. Okay. So this is my original incident ray. Here I will draw the normal to the surface. So this will become my angle made by incident ray with the normal. This will be normal. And now it will again bend towards the normal. It will bend towards the normal and I will get this to be R1. Here I will again draw the normal. Here it will be R2 and here it will be going parallel to the original ray. This is angle of emergence. So if you will place vertical also, then also we will get the same result.
So this phenomenon is called as double refraction, or it is called as double refraction. It means that refraction 1 in that first the light ray will bend towards the normal. Okay, from there it will start its journey, and in second refraction it is going from now, here it is rarer to denser, here it is denser to rarer. So it will bend away from the normal such that it will be parallel to the original incident ray. So the main motto of telling the story behind that is we are getting the ray to be laterally shifted. We are getting a lateral shift in the ray. Okay, wait for a while. So this one is very important. So angle of incidence, angle of emergence, they are very important as we are considering the refraction through glass slab. So suppose where it can be used, that we will see. Okay, so we will consider the cases, having different scenarios. Okay, suppose case 1 we are taking double refraction. I'll start with double refraction. So rarer to denser to rarer. So that was the first I told you right now just. So this is like that we just studied. It will go first towards the normal, now then it will bend away from the normal, and then it will go parallel. So this is a path. So beta here medium 1, medium 2, medium 1. Refraction 1. What we can write? I will call this to be my I1, this to be my R1. Here I2, R2. So whatever E we are calculating, that will not be E. Refraction 1 को कैसे ले लेंगे? I1. So sin I1 upon sin R1 is equal to N21, that is N2 upon N1. So whenever we will study the first refraction, we will get an important result. N1 sin I1 is equal to N2 sin R2. You have to keep in mind this. ये आपको ध्यान में रखना है. ये रिफ्रैक्शन 1 में हुआ. अब रिफ्रैक्शन 2 को थोड़ा देखो. ऑफ कोर्स ये अपना डेंसर मीडियम है. अब रिफ्रैक्शन 2 में क्या हो जाएगा बेटा? तो रिफ्रैक्शन 2 में बेटा क्या मिल जाएगा बेटा? रिफ्रैक्शन 2 में आई कैन राइट रिफ्रैक्शन 2 sin I2, एक मिनट, N2 sin R1, not R2. Very sorry, that R1 was there, na? So sin I2 upon sin R2 is equal to N. Now 2 to 1 जा रहा है, is equal to क्या बन जाएगा? N12, that is N1 upon N2. तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? N2 sin I2 is equal to N1 sin R2. Are you getting my point? Okay. तो यहाँ पे you can go with इसको R बोल सकते हैं, इसको भी R2 बोल सकते हैं. ये R2 बोला, R2 मतलब ये इधर का बोल सकते हैं, और E के रिस्पेक्ट में, E के टर्म में इसको बोल सकते हैं. तो ये मैंने आपको क्यों बताया? दिस इज कॉल्ड एज डबल रिफ्रैक्शन. एंड not only single effect of this, but starting with this angle
and having first refraction, after that second refraction, the effect will be this angle of emergence. So in double refraction, what we are interested in, we must study two important angles. कौन सा होगा बेटा? Two important angles. वो बन जाएगा नंबर 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बन जाएगा आपका एक इंपॉर्टेंस. सेकंड एंगल ऑफ इमर्जेंस. नाउ ये जो शिफ्ट है, whatever is the shift, how much it will shift, that will depend on degree of this refraction. मतलब क्या? The refractive index of the given pair of media. So lateral shift will depend upon okay, refractive index. ये important है, इसको IMP करते जाओ. That lateral shift will depend upon refractive index of given pair of media. That will depend on the refractive index of given pair of media. तो अगर ये pair of media change कर दे तो ये अपना shift okay, and it is constant for given pair of media. And also ये जो है, also it depends upon this thickness. Also it depends upon thickness. So whatever the lateral shift I am getting in this case, whatever the lateral shift I will get in this case it will be different, because now this thickness, suppose it is this, suppose it is small enough, suppose. तो यहाँ से ये जो मैं ले लूँगा, इसमें जो मेरे को शिफ्ट आएगा वो थोड़ा सा वो थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हाउ मच डिस्टेंस द लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू द सेकेंड मीडियम, that is important. So we are interested in how much distance the light travels in the second medium. So in that, degree of convergence or divergence, whatever it is there, that will depend. So that was all about the phenomenon for the glass slab. Now we'll go for understanding refraction through prism. So we'll go for understanding refraction through prism. So let's draw the diagram of the prism. आज तो prism के लिए ठीक से सब बना लेते हैं, and then we will go for next one. So we will start with refraction through prism. Next lecture I will be giving you some important formulae for lateral shift depending on thickness, then real depth, apparent depth, and total internal reflection. तो total internal reflection तो आपको इसके बाद ही दे देंगे. First we have to study the phenomenon of refraction through the prism. Prism is also doubly refracting medium. So पहले prism को draw करते हैं, बड़ा वाला draw करते हैं. So ये अपना बन गया प्रिज्म. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. ओके, एंगल ए क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म. इसको बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज. रिफ्रैक्टिंग एज इसको भी बोलते हैं, और इसको भी. ओके, तो भी लेते हैं वन रे विच हैज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म. सो सपोज दिस इज माय इंसिडेंट रे विच इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म. ये है,
क्या ऐसे जाना चाहिए? एक्चुअल में असल में ऐसे जाना चाहिए वो, तो देखेंगे क्या होता है। ओके, तो इसको हम डॉटेड से दिखाते हैं। ये बन गया मेरा इंसिडेंट। इस बेस को थोड़ा बढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा इसको बढ़ा के लेते। Now, here it is air, here it is glass, once again here it is air. Okay, so what will happen now? So, I think this diagram will be still small, no problem, okay, we'll go for it. Now here what will happen? It is going from rarer to denser medium. So यहाँ पे अपन को एक नॉर्मल निकालना पड़ेगा। तो पहले ट्राई करते हैं नॉर्मल निकालने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा नॉर्मल बनाते हैं। इसको बोलता हूँ n। ओके, बन गया अपना नॉर्मल। इसको कंटिन्यू करते हैं। नाउ the angle made by the incident ray with the normal will be called as angle of incidence. यहाँ से it will bend towards the normal, so it may go like that. Okay, now this will be R1, first refraction. तो यहाँ पे वो चला गया। Okay, now it is coming across second boundary, that is the boundary separating denser to rarer. So यहाँ पे भी उसका नॉर्मल बन जाएगा। वो कैसे बन जाएगा? यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसे बनेगा, perpendicular to the refracting edge. So I'll draw that normal like this. This will also be normal. Okay, तो ये जो है इसको मैं पाथ ऑफ ओरिजिनल इंसिडेंट रे कंसिडर करता हूँ, बिकॉज ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेके हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसको मैं ठीक से ये करके रखता हूँ। दिस इज द पाथ ऑफ ओरिजिनल इंसिडेंट रे, पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। नाउ व्हाट विल हैपन? Actually it should go like this, but it is going from denser to rarer, so it will bend away from the normal. So थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा ऐसा नीचे इस पॉइंट से और ऐसे चला जाएगा। तो इसको अगर मैं पीछे से ले लूँ, so it will make some angle with the original incident ray. इसको हम बोलेंगे डेल्टा। तो एंगल डेल्टा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एंगल है इसको R2 बोलते हैं, और ये जो एंगल किया है इसके साथ उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो एंगल I एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल E को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। समझ गए बेटा? सो ये चीज आपको सब ध्यान में रखना होगा। तो अभी इसको हम नाम देते हैं P, Q, R, S, T and U। P, Q, R and S, T, U, and इसको बोलते हैं V। और गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले हम ये एंगल का तोड़ लेते हैं। एक मिनट, 1 minute बेटा, that marker isn't working properly, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है उसका मार्कर का। ठीक है, उसका इंक का प्रॉब्लम है। तो ये जो एंगल है बेटा, ये बन जाएगा मेरा, ये पूरा अगर लिया तो ये वर्टिकल अपोजिट मतलब I बन जाएगा, उसमें से R1 निकालेगा तो ये बन जाएगा I माइनस R1। और ये एंगल अगर हमने लिया कौन सा, ये, तो ये बन जाएगा E माइनस R2। तो यहाँ पे मैं आपको वो निकाल के दिखाता हूँ। ऐसा कुछ तो बन जाएगा।
ये ऐसा और ये ऐसा, बीचों बीच ये लाइन, तो ये बन जाएगा I माइनस R1, ये बन जाएगा R1 क्योंकि ये मेरा इधर से I है, और वैसे ही ये बन जाएगा E, तो ये बन जाएगा E माइनस R2, ये बन जाएगा R2। ओके, ठीक है। सो अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला बनाने जाते हैं प्रिज्म के लिए। सो वी विल गो टू कंस्ट्रक्ट द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं क्या क्या है। तो ट्रायंगल पहले कंसिडर करो, ट्रायंगल STU। ट्रायंगल STU में क्या हो जाएगा, अभी एंगल का साइन वगैरह लिखता हूं, मैं डायरेक्टली लिखता हूं R1 प्लस R2 प्लस STU, एंगल STU इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल STU कितना बन जाएगा, एंगल STU विल बी 180 माइनस R1 प्लस R2, ये एक बन गया। ओके, दूसरा बन जाएगा इन ट्रायंगल SVU, इन ट्रायंगल SVU ये ट्रायंगल बन जाएगा, इट इज एक्सटीरियर एंगल, डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल, इट विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ मेजर्स ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से क्या मिलेगा बेटा, सो इंप्लाइज डेल्टा क्या मिलेगा, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस, माइनस एन कॉमन लेता हूं, ये बन जाएगा R1 प्लस R2। डेल्टा क्या बन जाएगा अपना I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अभी रेक्टेंगल लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल STUP, इन क्वाड्रिलेटरल STUP क्या बन जाएगा बेटा, एंगल ये PST प्लस एंगल STU प्लस एंगल TUP प्लस एंगल A विल बी 360। उनमें से आउट ऑफ दैट मेरा नॉर्मल जो है वो 90 डिग्री कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर 90 बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा 90 और ये भी बन जाएगा मेरा 90, और इसका वैल्यू तो मैंने लिया है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ PST जहाँ पे 90 प्लस ये लिखने का 180 माइनस, ठीक से लिखो इसको, 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस ये भी 90 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360। तो ये बन गया 90, ये बन गया 90, ये 180, तो ये पूरा बन गया 360। सो 360 माइनस R1 प्लस R2 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, तो यहाँ से मेरे को मिल गया ये पूरा मिला के एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। So if I'll put this value here, then therefore my delta will become, how my delta will become, तो डेल्टा मेरा क्या बन जाएगा बेटा, डेल्टा मेरा बन जाएगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू, देयरफॉर माय डेल्टा विल बी इक्वल टू I प्लस E माइनस A। तो यहां से मेरे को इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलेगा, A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E, A plus delta is equal to I plus E. So I will suggest you to note this all down because that's very important for you people to understand how it comes. Okay? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको नोट डाउन करने के लिए, इसको नोट डाउन करो, इसके बाद में हम आगे जाते हैं।
हो गया बेटा। सो a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। नाउ हियर इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, if you draw the graph of डेल्टा वर्सेस आई, तो जैसे आपका डेल आई बढ़ता जाएगा वैसे आपका डेल्टा कम होते जाएगा, एक पॉइंट को रुकेगा, मिनिमम वैल्यू दे देगा, फिर से चढ़ता जाएगा। सो इफ I is increased, if I is increased, तो पहले क्या होता है, then delta first decrease, then goes to its minimum value called delta m. This is called as delta m. This is called as delta m, angle of minimum deviation. तो यहां पे हम डेल्टा m लिखते हैं। ओके, if further increase in I, then delta increases। यहां से भी आगे अगर I मेरा इंक्रीज हो गया तो मेरा डेल्टा इंक्रीज करता है। तो डेल्टा m इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पे ये चीज आपको वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट my delta m will be angle of, sorry, my delta m will be angle of minimum deviation. So important, आपको नोट डाउन करना है। क्या नोट डाउन करना है, डेल्टा m उसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। डेल्टा क्या बन जाएगा आपका, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो यहां पे अगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आप डेल्टा से डेल्टा m ले लोगे तो वहां पे आपका I एंड E, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, दोनों भी सेम रहेगा। डेल्टा m is the point at which your angle of incidence and angle of emergence they both will be same। तो यहाँ इस चक्कर में हम कैसे लिख सकते हैं, if delta is equal to delta m then I is equal to E, so I can write I plus I, so I can write 2I, तो a plus delta is equal to 2I बन जाएगा, a plus delta will become 2I। okay, are you getting my point? okay, तो इतने तक हम देख चुके हैं। ओके, नाउ ये R1 और R2, तो बेटा अगर मेरा I और E सेम हो जाएगा तो I माइनस R1 एंड I माइनस R2 विल इट बी सेम, करेक्ट? नो, तो R1 एंड R2 बन जाएगा सेम, सो R1 विल बी इक्वल टू R2 इज इक्वल टू से R। तो मेरा A भी क्या बन जाएगा, A क्या है मेरा, R1 प्लस R2 है, तो अगर A मेरा R1 प्लस R2 है तो वो भी बन जाएगा 2R। कितना बन जाएगा, 2R, नहीं तो R बाय 2R बन गया तो R कितना बन जाएगा, A बाय 2 बन जाएगा। तो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, तो यहाँ से हम आगे चलेंगे, तो इसको पहले नोट डाउन करो, इसके बाद ये पूरी चीजें हम लिख के एक लास्ट में आपको डेरिवेशन निकाल के दिखाएंगे। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन अगेन।
ओके बेटा, हो गया। इसके बाद में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लिख के लेते हैं। Whatever the graph I gave ना, that is very important, very essential, आपको वो हरदम ध्यान में रखना है, क्योंकि वो ग्राफ के ऊपर डिपेंडिंग ऑन द ग्राफ आपको बहुत सारे क्वेश्चन सताने वाले हैं। एकदम इजी हो गया, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम एक एक चीजें लिख के लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, नंबर 1 a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं इसको। बाद में a इज इक्वल टू r1 प्लस r2, नंबर 2 बोलता हूं इसको मैं। इफ डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा m, तो क्या बन जाता है, I विल बी इक्वल टू e। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a प्लस डेल्टा m विल बी I प्लस I विल बी 2i, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। a प्लस डेल्टा m, इसको 2i बोलते हैं। तो मेरा i का वैल्यू कितना मिलेगा, i मिलेगा a प्लस डेल्टा m अपॉन 2, मेरे को i मिल गया। i क्यों चाहिए अपन को, क्योंकि अपन को फॉर्मूला यूज करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू और n इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ठीक है। ऑल्सो इफ i इज इक्वल टू e, then i minus r1 will be equal to e minus r2। ये भी एंगल सेम हो जाएगा, क्योंकि मतलब इसका मतलब क्या है, मेरा r1 विल बी इक्वल टू r2 विल बी इक्वल टू से r, उसको r बोलेंगे दोनों साइड में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देयरफॉर अपना इक्वेशन 2 कैसे बन जाएगा, इक्वेशन 2 विल बिकम, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 विल बिकम, अभी क्या बन जाएगा, a विल बी इक्वल टू 2r इंप्लाइज r इज इक्वल टू a बाय 2। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर स्टार, इसको बोलते हैं इक्वेशन डबल स्टार। तो अभी अपना फॉर्मूला क्या है म्यू के लिए, देयरफॉर अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अगर इसके लिए हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ व्हाट वी कैन राइट बेटा, तो हम आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू n मतलब n/1। देयरफॉर यहाँ पे i कितना है मेरा, i तो बन जाए a प्लस डेल्टा m अपॉन 2, देयरफॉर n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन r कितना है मेरा, a बाय 2। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स which can be proved from the prism। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं कभी कभी in terms of mu लिखते हैं उसको, तो mu is equal to same sin a plus delta m upon 2 upon sin a by 2। so this is the important formula। तो इसका आपको प्रैक्टिकल में, इसका प्रैक्टिकल भी है, आपको आप उसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। Once the school will be started, I will be teaching you the practical also। Okay, so that was enough about the diffraction through prism। हो गया? So I will suggest you to note this down। हो गया बेटा? अभी हम आगे जाते हैं। Sorry। Now, after studying refraction through prism, we can study different cases। Okay, we can study different cases। So what are those cases? So sometimes we are provided with some special problems।
तो स्पेशल प्रॉब्लम में आपका प्रिज्म के टाइप आपको आ सकते हैं। तो हम लेबोरेटरी में जो यूज करते हैं ये टाइप का प्रिज्म होता है। ये एंगल ए होता है, तो ए होता है 60 डिग्री। तो अगर ए 60 डिग्री है तो वो होता है इक्विलैटरल टाइप प्रिज्म। 60 डिग्री इक्विलैटरल, ओके। डबली रिफ्रैक्टिव, बाय रिफ्रैक्टिव इसको बोलते हैं, बाय रिफ्रैक्टिव मतलब 2 टाइम आप उसका रिफ्लेक्शन। तो ये दिखने में कैसा होता है, तो इसको अगर ऐसे रखा आपने तो ऐसे दिखेगा आपको। थोड़ा सा उसको निकाल के भी दिखाता हूँ। तो ये बन जाएगा इसका बेस, ये बन जाएगा बेस, और ये जो एंगल करेगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो वो एंगल उसका बन जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट में आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो दिखाऊंगा भी। वन होता है आइसोसेलेस प्रिज्म। वो कैसे होता है, ये जो एंगल होता है ये परफेक्टली 90 होता है। ये बचे हुए 2 होते हैं, इसको बोलते हैं A इज इक्वल टू 90 डिग्री आइसोसेलेस प्रिज्म। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसका एंगल 60 डिग्री होता है, इसका 90 डिग्री होता है। ये 2 बन गए टाइप ऑफ प्रिज्म। तो ये टाइप ऑफ प्रिज्म क्यों देखने का है, तो आफ्टर दिस वी विल बी थिंकिंग अबाउट द different colors and after the refraction what happens. So what we will do, first we will go for refraction through different spherical surfaces, and after completing the refraction through different spherical surfaces we will come to the solving of the problems for different for glass slab, for prism, for spherical means lenses and all. Okay, so that is one of the important thing. So before that, before starting for the refraction through the spherical surface, first we have to study what is the construction of the lens. तो lens के construction के बाद हम refraction through concave spherical surface, उसके बाद जाएंगे refraction through convex spherical surface. So first we will study lenses and their construction. इसके बाद में after this we will go for refraction through the lens. समझ गए बेटा, ठीक है। फर्स्ट ले लेंगे convex lens. So convex lens can be considered as made up of 2 spheres. So convex lens can be considered as made up of 2 spheres. Wait for a while. एक वायर लेते हैं, इसको वायर में फंसाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम 2 स्फेरिकल सरफेस ले सकते हैं, वैसे ही कॉन्केव लेंस के लिए भी 2 स्फेरिकल सरफेस हम ले सकते हैं। सो आई विल कंसिडर वन कॉन्वेक्स लेंस. For that I will consider 2 spherical surfaces. जो कुछ अपने पास है उससे हम कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। ओके, ठीक है, इसको ठीक से बनाते हैं बाद में। तो ठीक बन गया। तो यहाँ के लिए कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे कर लेते हैं और ये अपना एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे और उस सरफेस को बोलेंगे सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये बन गया मेरा फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस और वो बन गया मेरा सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, तो फटाफट उसको बना के लेते हैं और आज ये पूरा कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद में वी कैन गो फॉर refraction through concave spherical surface and refraction through convex spherical surface. ओके, तो यहाँ के लिए मैं, ये आपको हो चुका है 10th में, तो ज़्यादा इसके ऊपर मैं यहाँ पे एम्फोसाइज नहीं करने वाला, खाली आपको एक बार सब चीज़ें दोहरा देता हूँ so that you will not have any problem in understanding of the
कंसेप्ट, बाकी कुछ नहीं है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे ये लेंस है, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, बीचों बीच होता है वो, उसको बोलते हैं O। तो O क्या बन जाएगा मेरा, O बन जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। O क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। अब यहां से इसको बोलते हैं R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। R2 बन जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये बन जाएगा फर्स्ट फोकस और ये बन जाएगा सेकंड फोकस। सो F1 F2 R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, दो है इसलिए उसको रेडियाई बोला। F1 F2 फोकाई, फोकस इसको बोलते हैं फोकाई। फोकाई इज अ प्लूरल ऑफ फोकस। तो F को बोलेंगे तो हम यहाँ पे इस ऐसा लिखने की वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो हम R लिखते हैं। R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर वो R है, R1 है, तो इट विल बी फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर वो R2 है, देन इट विल बी फॉर सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो R विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर, F विल बी फोकस। तो यहाँ पे F1 F2 वो आपको समझ में आ सकता है। इसको बोलेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसको बोलेंगे सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये सेम हम 10th में पढ़ाते हैं, इसके लिए इसका ज़्यादा ये करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हम कैसे कंसिडर करते हैं, तो दो सरफेस इकट्ठा करके जो हमको बीच में मीडियम मिलता है वो बनता है कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे अपन के लिए 12th में क्या ज़रूरी है, 12th में स्टडी करना ज़रूरी है, इसको बोलते हैं, ये तो बन गया मेरा सब डेंसर मीडियम, और एक जो बनता है वो ऐसा बनता है, एक जो बनता है वो ऐसा बनता है। तो इसको बोलते हैं, जो पहले बना है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और इसको बोलते हैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, वेयर एज इसको बोलेंगे हम कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए अपना इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हाट विल डू, विल कंसीडर दैट light is going from rarer to denser medium, and for concave spherical surface here for convex lens denser to rarer medium। तो क्या बनता है बेटा, यहाँ पे ही दिखाता हूँ। जब लाइट आपका आता है किसी भी पॉइंट से, तो यहाँ पे अगर वो आया तो बाद में वहाँ पे आपको वहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑन एनीवेयर सपोज आई विल ड्रॉ लाइक दिस, so this will be the normal to the tangent। बन गया अपना, अगर ये टेंजेंट है किसी भी पॉइंट को तो ये परपेंडिकुलर बनता है। तो जो नॉर्मल है आपका, सो इफ यू आर कनेक्टिंग एनी पॉइंट ऑफ द स्फीयर विद द सेंटर, दैट whatever it will be there, that will be always working as a normal for us। so अपन के लिए वो क्या बन जाएगा बेटा, अपन के लिए वो बन जाएगा नॉर्मल। तो ये बन गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो अभी हम आगे जाते हैं। आगे के लिए क्या करेंगे, कॉन्केव लेंस का फिर से पता करते हैं, ओके। और उसके बाद में ये जो स्फेरिकल सरफेस वगैरह मिलता है उसका हम स्टडी करेंगे। सो नाउ कॉन्केव लेंस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब क्या होता है, कॉन्केव लेंस में भी दो स्फेरिकल सरफेस हम यूज करते हैं, लेकिन दो स्फीयर्स
एक दूसरे को मिलते नहीं है, दो भाई भाई एक दूसरे को मिलते नहीं है, थोड़ा झगड़ा है उनमें, एंड देयर इज सम गैप बिटवीन देम, सो देयर इज सम गैप बिटवीन देम। तो गैप होने की वजह से क्या होता है, बीच में हम कंसिडर करते हैं कि ग्लास का मीडियम है और उसके चलते अपन को कॉन्केव लेंस मिल गया। तो इफ आई विल फिल द गैप बिटवीन द टू बाय सम सेम ग्लास मटेरियल, तो हमें मिल जाएगा कॉन्केव लेंस। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूँ। तो ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया C2, ये बन गया C1, ये बोलेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये बोलेगा सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बीच वाला जो है उसको फिल कर देते हैं ग्लास से, तो ये बन गया मेरा कॉन्केव लेंस। इसको भी ऑप्टिकल सेंटर होता है, उसको बोलते हैं O। ओके, यहाँ पे F1 हो जाएगा, यहाँ पे F2 हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को R1, यहाँ पे मिलेगा R2। तो उस लेंस में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, दैट वाज इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो टू वरी फॉर दैट। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, तो ये बन गया आपका concave lens, structure of the concave lens, how we can hypothetically consider the concave lens is made up of, so this is called as the structure for the concave lens। तो ऐसे concave lens आपका बनता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, वो देखने के बाद आपको पता चलेगा ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है और ऐसे ही क्यों होता है, जो डाइवर्जिंग होता है, कॉन्वर्जिंग होता है। तो इसके लिए भी दो सरफेस हम कंसिडर करते हैं, ये बन जाएगा इसके लिए पहला, ये क्या बन जाएगा, कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और दूसरा वाला सरफेस इधर का है, बराबर, सॉरी उल्टा, अरे यार, ये ऐसा बन जाएगा ऐसा बन जाएगा इसके अंदर के लिए ना, और इधर से जाने के लिए ये बन जाएगा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये बन जाएगा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे एयर होगा और यहाँ पे ग्लास होगा, तो यहाँ पे रेयर मीडियम, यहाँ पे डेंसर, तो लाइट विल गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एंड यहाँ पे डेंसर टू rarer, so denser to rare। So in this way we can study the structure of the lens। तो अभी हम जाएंगे actual refraction through the spherical surface। So I'll suggest you to concentrate about the theory, because ये जो theory है ये very important है, और इस theory पे बसा हुआ first important proof आपका है, that is called as the lens makers formula। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला सीखने के लिए आपको पहले रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस आपको मालूम होना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक एक चीज लेके आपको हम पूरा डिटेल में बता देते हैं। तो पहले हो जाएगा आपका, फर्स्ट हम लिख लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, बराबर। सो नंबर 1, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, उसमें केस कितना आता है, केस 1 रेयर टू डेंसर, ये भी आपको मालूम है। मैं अभी ऐसा लेता हूं, अगर ये प्लेन सरफेस है, ओके, ये प्लेन सरफेस है और सपोज मेरा लाइट ऐसे जा रहा है, बराबर, तो यहां पे नॉर्मल कैसे बनेगा आपका, यहां पे नॉर्मल बन जाएगा आपका ऐसा, और लाइट कहाँ से जा रही है, रेयर टू डेंसर, डेंसर मतलब थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं, नाउ रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। एक्चुअली ऐसे जाना चाहिए था, वैसे नहीं गया वो,
वो थोड़ा शिफ्ट हो गया और ऐसे चला गया, थोड़ा ये कर गया। तो एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे, ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। केस 2 में क्या आ जाएगा बेटा? केस 2 में लिखेंगे डेंसर टू रेयर। अभी उल्टा जा रहा है, डेंसर मतलब यहां से अंदर से जा रहा है, अंदर डेंसर मीडियम है सपोज, और यहां से वो लाइट बाहर निकल रहा है। तो हम कैसे देखेंगे? सपोज तो यहां से सपोज ऐसे जा रहा है लाइट, सपोज तो ऐसे जाना चाहिए एक्चुअली। तो यहाँ पे पहले हम नॉर्मल निकाल के ले लेंगे। सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द, तो ऐसे जाएगा वो। तो आपको लगेगा कि जैसे कि आपको लगेगा जैसे कि वो लाइट पीछे से यहां से आया है। सो इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। आपको क्या लगेगा? इट विल अपीयर, दैट लाइट रे विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ के केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? इसको बोलते हैं 1 2, इसको भी बोलते हैं, लेकिन ये 2 है ना, इसको बोलते हैं 2 1। इसको क्या बोलेंगे अभी? आपको मालूम है वो सब, n1 sin i1। हाँ, तो sin i1 अपॉन sin r1 is equal to n21, that is n2 upon n1। तो क्या हम लिख सकते हैं? n1 sin i1 is equal to n2 sin i2। समझ गए? यहां पे भी 2 1 लिखा, बराबर। तो यहां पे भी, यहाँ इसको i2 बोलते हैं, इसको r2 बोलते हैं। तो sin i2 अपॉन sin r2, अभी कहां से कहां जा रहा है? 2 1 मतलब मीडियम का बोल रहा हूं। हाँ, तो विल बी इक्वल टू n1 2, 2 से 1 तक जा रहे हैं, आएगा n21, बराबर। सॉरी n1 2, 2 से 1 तक जा रहे हैं तो n12 आएगा। तो n1 अपॉन n2, यहाँ पे क्या आएगा? n2 sin i2 इज इक्वल टू n1 sin r2। सॉरी, यहाँ पे i1 r1 होना चाहिए ना, n2 sin r1। सॉरी, ये कितना बन जाएगा? n2 sin i2 इज इक्वल टू n1 sin r2, और यहाँ पे n2 sin r1 इज इक्वल टू n1 sin i1। तो ये समझ गए आपको? सो इट इज very important that if I will change the medium, then the formula for the refractive index and everything that will go on changing। अपन के मुताबिक, उसके मुताबिक जैसा हम वो कंसिडर करते हैं वैसे वो चेंज हो जाए। तो पहले अभी लेते हैं सेकेंड, रिफ्रैक्शन थ्रू convex spherical surface। Refraction through convex spherical surface। केस 1 इसमें भी हो जाएगा। ये मेरा स्फेरिकल सरफेस है, कॉन्वेक्स है क्या? ऑफ कोर्स है। तो इसको मैं ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ। इसको अगर मैं एक स्फीयर का पार्ट कंसीडर करूं तो यहाँ पे कहीं तो भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, यहाँ पे इसका फोकस बन जाएगा, बराबर। और ये मेरा पूरा स्फेरिकल सरफेस मिल जाएगा मेरे को, ये पूरा ये बन गया मेरा। हाँ, तो यहाँ पे क्या बन गया? ये बन गया रेयर, ये बन गया डेंसर। तो डेंसर मीडियम को 2 बोलते हैं, रेयर को 1 बोलते हैं। एंड लाइट कहाँ से जाएगा? सपोज 1 to 2 को जा रहा है। तो लाइट सपोज ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है। तो एक्चुअली वो कैसे जाना चाहिए? ऐसे जाना चाहिए, बराबर। देन जहां पे वो मीट हो रहा है, उस पॉइंट को अगर मैंने नॉर्मल निकाला, तो इस केस में नॉर्मल क्या था? पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस को। ये लेंस नहीं है ना, ये प्लेन सरफेस है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल हो जाएगा, ऑफ कोर्स नॉर्मल किसको मीट करेगा? ऑफ कोर्स
सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करेगा, क्योंकि मैंने आपको थियरी में बताया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे निकलता है और आपकी बाउंड्री में आपको मिलता है वो किसका काम करता है, इट वर्क्स एज अ नॉर्मल। तो ये बन जाएगा मेरा नॉर्मल। ओके, नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, it is going from rarer to denser medium, so it will bend towards the normal, and instead of going like that it will go somewhere like this and it will form image, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और ये बन जाएगा मेरा इमेज। समझ गए बेटा? एंड ये बन जाएगा मेरा एंगल आई, और ये बन जाएगा मेरा एंगल आर, ये बन जाएगा मेरा एंगल आई, ये बन जाएगा मेरा एंगल R. Are you getting my point? And I will be my image. I will be my image. समझ गए? तो मेरे को यहाँ पे 3 ट्रायंगल मिल जाएंगे, ये बाद में करेंगे। तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल मिल जाएंगे मेरे को, उस 3 ट्रायंगल का 3 मेरे को क्या मिल जाएगा, अल्फा, बीटा और गामा 3 एंगल मिल जाएगा, वो भी बाद में देखेंगे। इसमें ही अगर इफ वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट अनदर केस, तो इसके लिए हम अनदर केस लिखते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं ना बेटा, केस 2, अभी कॉन्वेक्स ही है, कॉन्वेक्स ही है, लेकिन कॉन्वेक्स ऐसे है, कैसा है, ऐसा है। अभी क्या हो गया, मीडियम तो कॉन्वेक्स ही है, मीडियम तो मेरा अभी कॉन्वेक्स स्फेरिकल ही है, लेकिन जहां से लाइट जा रहा है वो डेंसर है और जहां पे लाइट जा रहा है वो रेयर है, बराबर। तो यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूंगा, यहाँ पे बोलूंगा इसको मैं डेंसर, मतलब अभी 2 to 1 जा रहा है, और यहाँ पे इसको बोलूंगा मैं रेयर 1। तो सपोज यहाँ पे लाइट मेरा जा रहा है, तो जहां से वो निकल रहा है, सपोज यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, ओके। नहीं तो क्या करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे जाना चाहिए बेटा, तो ऐसे जाना चाहिए, मतलब ये आगे भी ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से अपना स्फेरिकल सरफेस है, तो उस स्फेरिकल सरफेस का सपोज ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से अगर मैंने उसको कनेक्ट किया तो वो बन जाएगा नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल बन गया तो अभी डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो इट मे गो लाइक दैट। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, सो आई विल थिंक दैट it is appear to come from here। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज वो डाइवर्ज कर रहा है, तो ये इसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं, नहीं तो इमेज भी, इसके लिए इमेज ट्रीट करेंगे, और पूरा लेंस अगर करेंगे उसके लिए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। सो दिस इज द वे इन विच इट कैन बी स्टडीड। तो ये बेटा ये बन गया कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का। अब इसको आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। अभी इसका मैंने इक्वेशन वगैरह कुछ आपको दिया नहीं है, वो कल के लेक्चर को दे देंगे। तो फर्स्ट आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, इसके बाद हम जाएंगे कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के लिए, तो इसको नोट डाउन करो। हो गया बेटा, टाइम होते आया, अभी कितना हो गया, 1 घंटा हो गया, ठीक है। कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस कंप्लीट करते हैं और बाद में हम लेक्चर स्टॉप। तो अभी हम क्या लिखेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। इसमें भी 2 चीज आती है। केस 1 क्या आएगा, सपोज ऐसा कॉन्केव है तो ये ऐसा
अरे सॉरी, ये बन जाएगा ऐसा। तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम, सपोज कहाँ से ले लेंगे लाइट को ले लेंगे रेयर टू डेंसर। सो रेयर मीडियम 1 बोलेंगे, डेंसर मीडियम 2 बोलेंगे। और मेरा लाइट कैसे जा रहा है बेटा? तो मेरा लाइट जा रहा है यहाँ से, सपोज ऐसे जा रहा है। सो इट हैज टू गो लाइक दिस। ओके, आर गेटिंग अ पॉइंट? तो इसको पहले नॉर्मल निकालते हैं। सपोज ये O है और ये बन गया, मैंने O को जोड़ दिया उससे। तो अब इससे अच्छा है, इससे अच्छा हम क्या निकालते हैं? इससे अच्छा हम लाइट आगे से आने का दिखाते हैं आपको, बिकॉज दैट इज वेरी इसेंशियल पार्ट इन स्टडिंग दैट। तो ठीक है, हम ऐसे निकालते हैं। अरे यार, तो ये O बन गया, ये मैंने नॉर्मल निकाला सरफेस को। और सपोज मैंने इसको क्या नाम दिया था? इसको रेयर बोला था, रेयर 1, और इसको बोला था डेंसर 2। तो सपोज मेरा लाइट रे यहाँ से, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये बन गया नॉर्मल, और ये मेरा लाइट रे है। अरे यार, लाइट रे मिल नहीं रहा है उसको, जाके कुछ प्रॉब्लम है उसका। ओके, सो एक्चुअली इट शुड गो लाइक दैट। सो कहाँ से जा रहा है? रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ऐसा बेंड हो जाएगा। सो इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम समवेयर हियर। ओके, ये एक बन गया। और केस 2 क्या बन जाएगा आपका? केस 2 बन जाएगा, इसके उल्टा बन जाएगा, कॉन्केव हो जाएगा। लेकिन डेंसर टू रेयर निकालेंगे तो कॉन्केव ही निकालना है, कॉन्केव ही निकालना है। लेकिन वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? डेंसर बन जाएगा, वहाँ पे रेयर बन जाएगा, है ना? यहाँ पे डेंसर, इसको 2 बोलेंगे, और यहाँ पे आएगा आपका रेयर, इसको 1 बोलेंगे। तो सपोज यहाँ पे मैं C लेता हूँ, तो ये मतलब बन जाएगा आपका नॉर्मल। और यहाँ पे आपका सपोज यहाँ से आपका लाइट रे जा रहा है, तो एक्चुअली वो कैसे जाना चाहिए? ऐसा। तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कहीं से भी यहाँ से आ रहा है, ऐसा दिखेगा। सो इन दिस वे वी कैन कंसिडर द रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट स्फेरिकल surface. So I will suggest you to go through all these things, make your proper notes, उसका formulation तैयार करने का try करो. In next article, next lecture, we will try to complete this refraction through concave and convex spherical surface and how we get the refraction through the lens. ये हम complete करेंगे. After that, we will go for the lens maker's formula. So today we shall stop here. I suggest you to go through each and everything. If you are having any problem, feel free to ask me. You may ask on my personal number. Till that, stay home, stay safe, stay tuned with physics. Bye bye.